Okay, so in the last class we have seen the installations of the JDK Java Development Kit, as well as we have seen the installation of Eclipse IDE also, right? So now we will try to run some of the basic programs, assuming that, because in fact, not assuming, but in fact, there are some people who are not from the computers background. So we will have to proceed accordingly. So let's just go and look what is inside the install. I think this we have seen in the last class. The JDK installation folder we have seen, right? Okay. So let's begin with some of the very basic fundamental program. There are a lot of people who have already have understanding of Java, so they will have to wait while we come to the level that they will be in a position to get something. But okay, so let me create a new folder and let me give it the name MCA Java batch. Okay. Okay. Now let me just create a notepad file or text file rather. Let me create a text file. Say Java prog, and instead of putting .txt we will have to use the extension .java, just like we use .c for C files, .cpp for C++ file, and so on, right? So the extension for a Java program is .java, right? So I have just created a program, I just created a file with the name javaprog.java. Okay. Now let me open. You see the icon also changed, right? Now let me open this file and type something. Uh, so it has started with Visual Studio. Okay, let it be. Class Java prog. Just uh, just notice I have given the name of the class as the same name of the file, exactly the same name of the file for now. Okay. So what is a class? Just to begin with, class is a keyword that is used to define a sort of specification of how a user defined data type will look like. ठीक है. डाटा टाइप का मतलब क्या होता है? किस टाइप का डाटा हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर्स पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये इंटीजर टाइप का डाटा है, राइट? अगर हम फ्लोटिंग टाइप यानी डेसिमल फ्रैक्शंस वाले नंबर्स यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे फ्लोट है या डबल है, राइट? सिमिलरली अगर वो कैरेक्टर है तो हम बोलेंगे कैर है, राइट? So in fact we have got all the keywords for such kind of data types. Like for example, if I say int x, right? So this x is a name given to a variable. This is either a variable, just like a small box, right? Where we can put a number, then as we wish we can take out that number, then put another number, and so on. So just assume a small bucket that is fixed to hold a number, a non-fraction number, right? And we say it variable because we put some number inside it, and then we can take out the number, then we can put some other number, and so on. We can keep it doing as long as we wish. So the value stored within this bucket may vary with time, may change with time, right? So whatever name we give it to it, say for example x here, so x is the name of a variable that can take different values with time, right? That's why we call it variable. While we say a constant is something
To constant also we give some name, right? We give it a label or a name, just like x. But we define the constant in such a way that when we say this variable is holding a constant value, then we should not be allowed to change the value of that particular label, right? So as of now, we are looking at a variable of the type integer. So this bucket can hold only integer data, right? Similarly, if I want to have a floating point or a decimal, then I will just say float, say f, right? It's a floating point value that can hold decimal also, right? So this is how we define the data type, and these are called as primitive data types. These are called as, this is the comment, single line comment, primitive data type. What is a comment? A comment is a, it's just to explain what we are going to do, and this will not be the part of the execution. ठीक है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई आउटपुट आएगा, राइट, या कोई कंप्यूटेशन में इसका यूज है, बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए हमने एक यूज कर रखा है कि भाई ये जो हम शुरू कर रहे हैं ये प्रिमिटिव डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं हम, राइट. So these are called primitive data type. Why primitive? Not predefined. Primitive. Predefined है, that is one thing, but they are primitive का मतलब क्या होता है? Literal meaning क्या होती है? ना, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव का लिटरल मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव वर्ड का लिटरल मतलब, प्रीडिफाइन तो देखो आप स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हो, स्ट्रिंग क्लास आपने नहीं बनाया है, जावा के डेवलपर्स ने बना के आपको दिया है, तो प्रीडिफाइन तो वो भी हुआ है ना. प्रिमिटिव का मतलब होता है, आप कहते हैं ना, समथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइम, बहुत पहले से, हिस्टोरिकल टाइम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लैंग्वेजेस बनना शुरू हुई तो इस तरह के डाटा टाइप का एक ट्रेंड रहा. सबने इंटीजर डाटा टाइप को एक्सेप्ट किया, फ्लोट डाटा टाइप को एक्सेप्ट किया, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, इस तरह के डाटा टाइप हर लैंग्वेजेस में शुरू से रही है. हाँ, शुरू से हर लैंग्वेज में रही है, तो वो ट्रेंड फॉलो होता रहा, राइट. तो वो डाटा टाइप उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप. नाम से ही आपको समझ में आ जाएगी चीज, है ना. जब भी कोई नई चीज पढ़े उनके नाम का मतलब अगर नहीं है तो गूगल करके देख लो कि उससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा क्यों इसका नाम ये दिया गया. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव डाटा टाइप. एंड द सेकंड टाइप ऑफ डाटा टाइप आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. ठीक है, जिसको हम डिराइव डाटा टाइप भी कहते हैं. ठीक है, वो डिराइव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इन्हीं प्रिमिटिव की ग्रुपिंग होती है, वो बेसिकली इन्हीं को हम यूज करके एक नया डाटा टाइप बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहना है कि भाई हमें स्टूडेंट डाटा टाइप की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी फंक्शन ऑपरेशंस हो गए, फंक्शंस जो है उन डाटा टाइप पे ऑपरेशंस हो गए, अभी उस पर हम बाद में आते हैं. ठीक है, अभी हम सिर्फ डाटा टाइप की बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट की, ठीक है, तो लेट मी से अभी इस क्लास को हम थोड़ा सा ऐसे ही रखते हैं, हम यहाँ पे एक नया क्लास देख रहे हैं बस, खाली इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में. स्टूडेंट, ठीक है, हम एक स्टूडेंट डाटा टाइप बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को कैप्चर करना चाहते हैं, राइट. तो अब इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं बल्कि स्ट्रिंग भी यूजर डिफाइंड है, ये सारी जो स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सारी चीजें, ये तो प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको जो शुरू से हर लैंग्वेजेस जो फीचर्स देती हैं वो आपको दे रही हैं. अब यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है कि अब आप उनको यूज करके ऐसे डाटा टाइप बनाना चाहते हैं, ये यूजर डिफाइंड हुआ क्योंकि अब इसमें हमें कई चीजें चाहिए ना, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, इन्हीं प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट का एज चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, STUDENT स्टूडेंट अंडर और स्टूडेंट नेम, कैमल केस फॉलो कर लिए, स्टूडेंट नेम. ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया जिस पर हम कह रहे हैं कि हम नेम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ये चूंकि नाम एक स्ट्रिंग हो सकती है, दैट इज सेट ऑफ अ कैरेक्टर, so we have got already a user defined data type given by the Java developers by the name string. तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, राइट. तो ये हमने कर दिया, राइट. Similarly, I want to define the age. Now, age could be a non-decimal, fractional number, right? तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपली हम int age कह सकते हैं या student age कह सकते हैं, just to follow the same convention, ताकि नोशन सेम रहे. स्टूडेंट, सॉरी, एज कह सकते हैं, फाइन.
करेक्ट है यहाँ तक? तो अब क्या हुआ, अब ये जो स्टूडेंट हुआ ये मोर देन वन प्रिमिटिव डाटा टाइप और सम ऑफ द बेसिक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप व्हिच हैज बीन गिवन बाय द जावा डेवलपर्स, उनको यूज करके हम डिराइव्ड डाटा टाइप कह रहे हैं या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कह रहे हैं। ठीक है, फाइन, इतनी बात समझ में आ रही है? और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं कि कोर्स अप्लाइड फॉर से लास्ट स्कूल अटेंडेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो so class is a keyword which helps you to make a user defined or a derived data type plus something more। जब इन्होंने ऑपरेशंस की बात की ना, उससे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, अभी बेसिक लेवल पे हम सिर्फ डाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा की बात करें तो वो कई डाटा को क्लब करके एक स्ट्रक्चर दे रहा है, जैसे सी में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी टाइप से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज ना करके आप क्लास कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सिर्फ डाटा भी नहीं होंगे प्लस ऑपरेशन भी होंगे जो हम बाद में देखेंगे भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो लेट मी जस्ट गेट rid of this student class just for the example purpose। आ रही है, लेट्स गो बैक हियर। ठीक है, ओके, सो public static void main string args, एक लाइन का कोड लिख रहे हैं, फिर समझेंगे ये क्या है। ठीक है, सिस्टम, एक्चुअली विजुअल स्टूडियो खोल दिया ना मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये वो भी हेल्प नहीं दे रहा है, प्रिंट आईडी, प्रिंटर एंड आईडी हेल्प नहीं दे रहा है मुझे। ओके, hello, let me say just for hello world, okay, as of now we terminate the statement by a semicolon। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, एक क्लास डिफाइन किया, उसमें डिक्लेयर किए कुछ प्रिमिटिव वेरिएबल्स, एक इंटीजर टाइप का है नॉन डेसिमल नंबर, एक फ्लोट टाइप का है विद डेसिमल नंबर। ठीक है, और एक मेथड बनाया मैंने जिसका नाम मेन है। ठीक है, अब जो लोग दूसरी लैंग्वेजेस से फैमिलियर हैं या जावा से फैमिलियर है वो समझते हैं मेन का पर्पस क्या है। अदरवाइज जो लोग पहली बार प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं वो ये समझ लें कि मेन वो फंक्शन होता है, वो मेथड होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट्स आर मेंट टू प्रोड्यूस सम कंप्यूटेशन रिजल्ट्स और आउटपुट। ठीक है, स्टेटमेंट जो जितने, ये स्टेटमेंट है एक, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ से खत्म हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ अ फंक्शन। बॉडी ऑफ अ फंक्शन, मेन इज अ फंक्शन। फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ करने के लिए बना है, टू फंक्शन समथिंग, टू डू समथिंग, राइट? इट हैज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद इट, ये कुछ करेगा। ठीक है, जबकि ये क्या है? ये डाटा है, ये डाटा को होल्ड करने के लिए बकेट्स है। ठीक है, ये डाटा है, तो लेट मी से इन अ बेटर टर्म, दिस इज द डाटा वी हैव डिफाइंड एंड दिस इज द बिहेवियर वी हैव डिफाइंड। ठीक है, डाटा के लिए हमने वेरिएबल्स को यूज किया है और बिहेवियर के लिए फंक्शन को यूज किया है। राइट, क्लियर है? एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द होल क्लास, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब ये समझ लो कि मेन एक क्या है? फंक्शन या मेथड है, और ये वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां से कोड की एंट्री शुरू होती है। यानी अगर आप इस प्रोग्राम को जो मैंने बना दिया है अभी, एक प्रोग्राम बन गया अभी ये, ठीक है, इसको मैं रन करना शुरू करूं तो सबसे पहले क्या होगा? इस मेन के अंदर एंट्री होगी। ठीक है, इस लाइन को भी आप छोड़ दें फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये समझिए कि बॉडी यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, तो जब एंट्री हो रही है तो पहली लाइन कौन सी है? ये वाली है, यानी ये लाइन रन करेगी। अच्छा, इस लाइन का काम क्या है? सिस्टम आउट क्या है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल समझ ले कि ये कुछ प्रिंटिंग का काम कर रहा है। प्रिंट एलन मेथड है, प्रिंट एलन एक फंक्शन है, ये कुछ प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कहाँ पे करेगा? तो डिफॉल्ट जहां प्रिंट करता है वो कंसोल आपका होता है, यानी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, राइट? तो ये प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है? जो प्रिंट करना है उसको डबल कोट में मैंने लिख रखा है, मैसेज। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड एक मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, सबसे बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, अभी इस पूरी लाइन का मतलब क्या है ये बाद में देखेंगे, बस ये समझ लें कि ये एक तरह का
फंक्शन है जो बिहेवियर क्या इसका है कि वो इन स्टेटमेंट्स को एक्सिक्यूट करेगा और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं एक स्पेसिफिकेशन या आउटलाइन देने के लिए, ठीक है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डाटा होता है, दूसरा बिहेवियर होता है। देयर कुड बी मोर देन वन डाटा एलिमेंट्स, देयर कुड बी मोर देन बिहेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, डाटा एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट कहेंगे, वेरिएबल या कांस्टेंट कहेंगे। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल देखा है, कांस्टेंट नहीं देखा है। ठीक है, वेरिएबल आपको बता दिया वो स्पेस जो आप अलोकेट करते हैं जिसमें वैल्यूज को आप बार बार चेंज कर सकते हैं, कभी कोई वैल्यू डाला फिर उसको दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसा बकेट जिसमें सामान डाला आपने, निकाला, फिर दूसरी चीज डाली, फिर एज पर द रिक्वायरमेंट आप डालते गए निकालते गए। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेरिएबल। ठीक है, फाइन। दिस जावा प्रोग्राम is a name given, is a name given, x is also a name given, f is also a name given, right, or a label, right. Main is a name given to identify things. This identify a class. Java program identify a class. X identify a integer type variable, right. F identify a floating type variable. Main identify a function or behavior, right. So in general, we will call all these are identifiers. क्या कहेंगे, टर्म याद हो गया? ठीक है, ये सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी न किसी चीज को। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक बार चला के देख ले पहले कैसे काम कर रहा है। कंट्रोल एस, लेट मी सेव इट एंड लेट मी डू सम मिस्टेक इंटेंशनली। मैं एक गलती करना चाह रहा हूँ। हमने पहला प्रोग्राम बनाया है, जाहिर सी बात है हाथ से टाइप किया, कुछ गलती होनी चाहिए। अभी तो मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन लेट मी डू सम मिस्टेक। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सिस्टम लिखा है ना, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसको SYSTEM ही होना चाहिए था, लेकिन मैं स्पेलिंग मिस्टेक इंटेंशनली कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। लेट्स डू इट द रॉन्ग वे, देन वी विल ट्राई टू करेक्ट इट। ठीक है, अब देखिए हमने JDK इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, डेवलप हम कोड कर रहे हैं, जब डेवलप कोड कर रहे हैं तो उसको रन करके टेस्ट भी करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें। फाइन, लाइनस पे टर्मिनल आप खोल लेंगे, लाइनस सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगी कुछ डायरेक्टरी के साथ, जो डिफॉल्ट आपकी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका। लाइनक्स में आपको या तो डॉलर साइन दिखेगा या रूट वाला सिंबल दिखेगा, राइट, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं उसके हिसाब से। नाउ where this program file I have created in the folder C drive MCA Java batch with the name javaprog.java, right. So first thing that I have to do is I have to go to that particular directory. Let me use the command change directory cd uh, uh, cd backslash. It will just take me to the root location, that is the C drive for this drive, and then let me say cd mca tab mca batch। मैंने टैब प्रेस किया, पूरा उसने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। इंटर, डायरेक्टरी चेंज हो गई, उसके अंदर हम चले गए। इफ आई वांट टू सी व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, आई विल जस्ट प्रेस द dir बटन। नहीं, ये आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, राइट, डिफरेंट फोल्डर। फोल्डर मैंने कुछ और बनाया था, राइट। हाँ, ओके ओके ओके, बताता हूँ अभी। CD बैकस्लैश आपको डी ड्राइव करनी है, डी कॉलन कर दीजिए। हमारे पास डी ड्राइव नहीं है बेसिकली, अगर डी ड्राइव करनी है डी ड्राइव कर दीजिए। पेन ड्राइव है तो ई ड्राइव अगर होगी तो ई ड्राइव ई कॉलन कर दीजिए, वहाँ चली जाएगी। ठीक, तो आपको वही लगाना होगा, ड्राइव चेंज करना होगा। ठीक है, तो नाम MCA चूंकि एक से शुरू हो रहा है तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि MCA जब मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में होगा उससे ले लिया होगा, MCA जावा बैच, राइट। अब हम ऐसे करते हैं, CD स्पेस MCA J प्रेस कर दे रहे हैं। जे कैपिटल था कि स्मॉल था, आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जावा ट्यूटोरियल इससे भी नाम है कुछ, CDMCA और ये है, राइट। टैब प्रेस करते ही अपने आप वो दिखाता जाएगा, राइट, जावा बैच।
ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्टरी में एक फाइल हमको दिख रही है java prog.java, राइट। अब ये प्रोग्राम है जिसको हमें रन करना है, ठीक है। तो रन करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद दूसरा स्टेप होगा कि हम उसको रन करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाया था मैंने जावा के प्रोग्रामिंग जो जावा का जो इंस्टॉलेशन फोल्डर था प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, उसके अंदर आपने देखा था कि जेडीके का जो इंस्टॉलेशन फोल्डर था, ठीक है, उसके अंदर एक बिन फोल्डर था। ध्यान आ रहा है या फिर से देखना है एक बार, याद है? ठीक है। तो बिन फोल्डर के अंदर जावा सी और जावा नाम की दो exe फाइल थी, राइट। जावा सी इज कंपाइलर एंड जावा इज द इंटरप्रेटर दैट इज यूज्ड टू रन द प्रोग्राम। बेटा जो आप दोनों पीछे बैठे हैं जरा आगे आ जाओ, इधर आप दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर जगह खाली है। पीछे जो लोग होते हैं ना वो अनप्रिविलेज लोग बैठते हैं, ठीक है। आप लोग प्रिविलेज हो, ठीक है, पीछे नहीं बैठना है, ठीक है। देखो, टीचर से जितना आई कांटेक्ट रहेगा, अगर आपको पहले से नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। छुप के बैठोगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, कंपाइल करना चाह रहे हैं। सो वी विल यूज द जावा सी कंपाइलर। जावा सी कमांड यूज करा हमने। फाइल नेम क्या था हमारा, क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रही है जावा prog.java एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। इसी को हमें लिखना है बस। जावा टैप कर दूं मैं, अपने आप वो आ भी जाएगी, राइट। टैप की प्रेस किया मैंने तो वो कंप्लीट, उसने ऑटो कंप्लीट कर दी क्योंकि कोई दूसरी फाइल नहीं है मेरे पास। जब मैंने इसको इंटर किया तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, वन एरर। हमने जानबूझ के ट्रिशी एरर मतलब छोड़ी थी उसमें। क्या था, कुछ एरर से देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, पैकेज SSTM डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये हालांकि वो पैकेज नहीं है, दैट्स द नेम ऑफ अ क्लास, सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया उसमें कि क्या है, तो उसको लग रहा है शायद ये पैकेज वेज का नाम है, क्या है पता नहीं। लेकिन वो आपको एटलीस्ट उस जगह पे एक कैप लगा करके ये इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ इसी के आसपास गड़बड़ी है ना, उस लाइन को शो भी कर रहा है ना। सो लेट मी गो बैक एंड लेट मी करेक्ट द मिस्टेक, कंट्रोल एस, ठीक है। दोबारा से हम वही कमांड चलाते हैं। देखिए अब कंपाइल हो गया। जब ये कंपाइल होगा तो कोई मैसेज नहीं देगा, चुपचाप से काम करके कंपाइलर चला गया वापस, ठीक है। अब हमें देखना है कि काम हुआ है तो कुछ इसका रिजल्ट बना है कि नहीं बना है। अभी तक हमारे पास इस डायरेक्टरी में एक फाइल थी जावा prog.java। अब इसको dir करिए। अब देखिए आपको दो फाइल दिख रही है विद द सेम नेम जावा prog बट विद एक्सटेंशन डॉट क्लास नॉट डॉट जावा, ठीक है। अब ये जो फाइल बनी है ये एक इंटरमीडिएट फाइल है, यानी बीच की फाइल है, ठीक है। इस फाइल को हमें रन करना है, ठीक है। अब अगर हम जावा prog.java को हम डिलीट भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रन करने तक। अगर प्रोग्राम में चेंज करने तक तो हमें चाहिए वो फाइल ना, क्योंकि उसमें कोड लिखा है हमने। लेकिन अगर सिर्फ रन करने तक की बात है तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डॉट क्लास फाइल है, ठीक है। इसे एग्जैक्टली सेम नाम से डॉट क्लास फाइल बना दी, ये बीच की फाइल है। अब हमें इसको रन करना है तो हम क्या करेंगे, अब वो जावा वाला इंटरप्रेटर जो था, ठीक है, इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जावा डॉट क्लास वाली, अरे ये कुछ भी नहीं है ये, बस वो dir बता रहा है कि तुम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हो, ठीक है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम बाहर से खोल के देखना चाहो इसको तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, यही दो फाइल ही दिखेगी, यही डायरेक्टरी है ना। वो एक नोटेशन है कमांड प्रॉम्प्ट पे, डॉस के का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नोटेशन है उसको दिखाने के लिए तुमको, ठीक है वैसे, ठीक है, क्लियर है। देखो इसके आगे एक डॉट भी लगा हुआ है ना, इस डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। दो डॉट लगाओगे तो एक स्टेप पीछे जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जब आप कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, HTML ही कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको एक इमेज फाइल अगर लोड करनी है तो अक्सर आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे, डॉट लगा के बैक स्लैश लगाया, फिर या उससे पहले डबल डॉट लगाया। तो डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट करो, रिलेटिव बात, अदरवाइज दो स्टेप पीछे चले जाओ, यानी पीछे डायरेक्टरी में चले जाओ, ठीक है, तो वो मतलब होता है, ठीक है। अब इसको रन करें हम, जावा स्पेस जावा प्रोग्राम डॉट क्लास को रन करना है, लेकिन हम डॉट क्लास नहीं देंगे, ठीक है।
हम सिर्फ इतना ही देंगे, ठीक है। एक्चुअली हम क्लास का नाम नहीं दे रहे हैं, हम ये क्लास की फाइल नहीं दे रहे हैं, हम क्लास का नाम बता रहे हैं उसको, बाकी वो फाइंड आउट कर लेगा वो। हाँ, ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। पहली बार जब हमने कंपाइल किया था तो क्या किया था, जावा सी जावा prog.java पूरा नाम दिया था, जिसमें जावा फाइल वो टेक्स्ट फाइल है जिसमें हमने कोड लिखा था, ठीक है। अब जब हमें रन करना है तो सिंपली जावा prog, बशर्ते आपकी डॉट क्लास फाइल बन चुकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे क्या हुआ, आपका मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। लेट्स डू। तो आप जावा मान लीजिए वो है आपका abc.class, बन चुकी है ऑलरेडी, कंपाइल हो चुकी है, तब उसको रन करना है तो आप बोलेंगे जावा abc, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, हजार होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए अब इसमें हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, राइट, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, हेलो वर्ल्ड, इसके बाद डालें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी मैं विजुअल स्टूडियो में दिखा रहा हूँ, हालांकि विजुअल स्टूडियो में हम काम नहीं करेंगे, हम इक्लिप्स में ही काम करेंगे। ये अपने आप इसने विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है, खोल दिया, इसको ओपन कर दिया फाइल को। एक्स इक्वल टू, ये तो मैसेज प्रिंट हो गया, डबल कोट में जो वो स्ट्रिंग मैसेज है। अब इसमें हम कोई चीज जोड़ना चाहते हैं जो वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस यानी जोड़ो, ये जो स्ट्रिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग लिख चुके हैं, इसमें जोड़ दो एक कैरेक्टर या एक और स्ट्रिंग बना करके, क्या, एक्स को। अब ये एक्स वेरिएबल है, इसमें कोई नंबर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उस नंबर की वैल्यू को हमने जोड़ दिया एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग के साथ, यानी एक्स इक्वल टू जो नंबर उसमें वैल्यू होगा वो चला जाएगा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, ये डबल कोट में जो है वो स्ट्रिंग है, तो अगर एक्स की वैल्यू 5 हुई, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 5 एक पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी और पूरी स्ट्रिंग कंसोल में चली जाएगी। जब भी आप इनपुट आउटपुट करते हैं तो स्क्रीन से पे प्रिंट करना या कीबोर्ड से लेना, वो सारा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना। अगर आप रीड कर रहे हैं तो रीड करने के बाद टेक्स्ट, अगर आप 5 भी रीड कर रहे हैं तो 5 को फिर आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे स्क्रीन से कर रहे हो, चाहे एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं सर्वर पे, ठीक है, ये सारे काम जो होंगे टेक्स्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप जो भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि x इक्वल टू एक स्ट्रिंग थी, उसमें उसकी वैल्यू 5 है, तो 5 उसको मिला करके पूरी एक स्ट्रिंग बना दो और उस स्ट्रिंग को कंसोल में प्रिंट कर दो। आगे बात समझ में? ओके, अब क्या आउटपुट होगा हमारा, देखें एक बार। एस की वैल्यू हमने कोई दी नहीं है, देखते हैं अभी। अच्छा ये बताओ, अब कोड हमने चेंज कर दिया है, क्या हम इसको डायरेक्टली जावा प्रोग्राम रन करेंगे तो चलेगा? दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि कोड चेंज हो गया है, नई कंपाइल फाइल चाहिए हमको, तो हम पुराने कमांड पे जाते हैं, जावा प्रोग्राम अगेन, ठीक है। अगर इसको एक बार आपको देखना है तो आप ऐसे देख लीजिए, del स्पेस जावा प्रोग्राम डॉट क्लास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब dir करके देखिए, वो फाइल चली भी गई, ठीक है। दोबारा से जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो वो दोबारा से बन के आनी चाहिए, राइट। अब क्या कह रहा है, अच्छा, स्टैटिक एरर आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं इसके आगे एक स्टैटिक कीवर्ड जोड़ दे रहा हूँ, अभी उसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाद में देखेंगे हम इसको। TATIC, ठीक है। जब भी कीवर्ड लिखेंगे अपने आप इसे कलर चेंज कर दिया, हर आईडी में चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड है, ठीक है। एक कीवर्ड हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अभी बेरर आएगा क्या? वैल्यू तो इनिशियलाइज नहीं करनी, फाइल कांस्टेंट भी नहीं होगा। अगर आप जावा जानते हैं तो फाइनल से कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वैल्यू तो अभी भी हमने एक्स की नहीं डाली है, उसमें कोई भी एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी का मतलब सी लैंग्वेज में क्या था, गार्बेज वैल्यू। यहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इंटीजर की 0 होगी। लेट्स सी, एक बार कंपाइल दोबारा से करें, कंपाइल हो गया, ठीक है।
अब इसको रन करके देख लें। जावा स्पेस क्या करना है, डॉट क्लास लगाने की जरूरत नहीं है हमको, जावा प्रोग्राम इतना देना है, x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी जगह मैंने फ्लोट को की वैल्यू को प्रिंट करा होता, इसको भी स्टैटिक कर दें एक बार, वरना फिर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा चलो, तो मैं ऐसे नहीं समझ में आ रही, ऐसे देखो अब ठीक है, डायरेक्टली इसको ही प्रिंट कर रहे हैं, वो मैसेज के साथ प्रिंट कर रहे थे, अब बिना मैसेज के साथ प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो वैल्यू 0 जा रही है, वो 0 एज अ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं जा रही है प्रिंट होने के लिए इस कंसोल पर, वो स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट होके, मतलब कैरेक्टर में कन्वर्ट होके जा रही है वो। ठीक है, let me just copy this line and paste it here, और इस पे हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह फ्लोट वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, एक भी लाइन के कैरेक्टर भी चेंज कर दिया तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल कर लिया, अब रन कर लें। अब वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 0 एंड 0.0। तो डाटा टाइप के हिसाब से जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो भी चेंज होगी। जैसे अगर एक इंटीजर डाटा टाइप है या न्यूमेरिक डाटा टाइप है, नॉन डेसिमल है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है या डबल है, जो भी अगेन फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, तो उसकी 0.0 होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे भी इसको देखेंगे। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू तो पिक कर रहा है वेरिएबल, करेक्ट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इनको वैल्यू असाइन करके फिर प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, x चूंकि वेरिएबल है हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू, x इज इक्वल टू से 6, ठीक है, एंड f इज इक्वल टू 7.5। अभी जोड़ रहा हूँ, अभी इसकी फिक्र ना करो। ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं वो आगे बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने f लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए हम क्या करें, इसको दोबारा से यहाँ लाएं और यहाँ पे एक मैसेज पहले प्रिंट कर देते हैं। सॉरी, एक लाइन, दो लाइन की जरूरत थी, एक ही लाइन काफी थी। after the initialization of both the variables x and f। ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले बिना इनिशियलाइज किए हमने वैल्यू प्रिंट करी थी। ठीक है, तभी समझ में आ रहा है, एक फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीपल स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन बाय लाइन इन अ सीक्वेंस। ठीक है, यही तो कर रहा है, राइट। और एंट्री कहाँ हुई है, इस फंक्शन में हुई है। फंक्शन की बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ और यहाँ तक खत्म हो रही है। तो पहली लाइन उसने ये एक्सिक्यूट उसको करना है, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करना है, उसके बाद एफ की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन में जाएगा, फिर एफ की वैल्यू प्रिंट करेगा, वो अगली लाइन में जाएगा। दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई थी, तो पहले में 0 प्रिंट किया, दूसरे में 0.0 प्रिंट किया, राइट। फिर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी, अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, बस इनिशियलाइज हो गई, यानी कंटेनर में, डिब्बे में एक x नाम के डिब्बे में क्या चली गई, 6 चली गई, और f नाम के डिब्बे में 7.5 चली गई, फ्लोटिंग पॉइंट। f बेसिकली इट्स एन इंडिकेशन दैट इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर सम रीजन वी हैव पुट, ठीक है, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा जो स्क्रीन में नजर आएगा, आफ्टर द इनिशियलाइजेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स x एंड f। फिर क्या कर रहे हैं हम, अगेन x एंड f को प्रिंट कर रहे हैं, तो 6 और 7.5 इसके बाद नीचे प्रिंट होना चाहिए, राइट। सो लेट मी कंपाइल अगेन एंड क्या हुआ, सेव नहीं किया मैंने, एक बार देख लेते हैं सेव करके। वैसे स्टार्ट दिख नहीं रहा है, नहीं ये शायद गोल दिख रहा है, हाँ आप सेव नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ था, तो इसलिए कंपाइल ही नहीं हुआ। जब सेव नहीं हुआ तो उसने चेंजेस लिए नहीं। चलो देख लेते हैं एक बार, देखो अब आए ना, वही बात है, ठीक है, सेव नहीं किया था। नहीं नहीं, इंडिकेशन है, उस क्यों लगाना है, क्यों जरूरी है, और इंटीजर में क्यों नहीं लगाया, उसकी बात भी अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज हम डिले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं हटा के दिखा देता हूँ। चलो देखो, अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम थी,
हटा दिया मैंने। अब कंपाइल करके देखो कोड को, सेव तो कर दिया मेरे ख्याल से, आपकी बार कर दिया, सेव कर दिया। देखो अब ये प्रॉब्लम कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ये इसको बाय डिफॉल्ट डबल मान रहा है और कह रहा है कि डबल चूंकि बड़ा बकेट साइज होता है, नाम ही डबल समझ में आ रहा है, फ्लोट है छोटा बकेट साइज, तो कह रहा है बाय डिफॉल्ट वो मान रहा है उसको। भाई देखिए, अगर इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ी चीज डिले करते हैं, बट अब थोड़ा आपने अर्ली उसमें पिच इन कर दिया। एनीवेज, बाय डिफॉल्ट अगर कोई डेसिमल टाइप का कांस्टेंट हम डालेंगे, कोई वैल्यू डालेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसको डबल डाटा टाइप का लिया जाएगा। डबल इज अ डाटा टाइप, ठीक है। और वेरिएबल को डिक्लेयर आपने फ्लोट नाम से किया है, तो फ्लोट जो वेरिएबल होता है उसकी साइज छोटी होती है, डबल की साइज उससे दुगनी होती है। अब वो क्या करेगा कि बड़े बकेट का सामान जब छोटे बकेट में डालना है तो कंपाइलर को परेशानी होगी, कहेगा मैं नहीं डाल सकता भाई, ठीक है। तो हमने वहां एफ लगा के इंडिकेशन दिया था कि भले ही ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट ये डबल लग रहा हो, लेकिन डबल नहीं है बल्कि फ्लोट ही है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ तक सब कुछ सही है, राइट। अब देखो, हम एक काम करते हैं, इसी तरह कुछ काम सेम जो हमने करा है इसको आईडी यूज करके करते हैं, ठीक है। आईडी हमने इक्लिप्स इंस्टॉल कर रखा है, उसको यूज करके करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो लेट मी ओपन इक्लिप्स। रिसेंट इंस्टॉलेशन कौन सा है? मेरे ख्याल से ये वाला होगा, ठीक है। ये तो जावा के टेक्नोलॉजी स्टैक में ही आता है ना। जेई, स्प्रिंग जेई तुम्हें यूज करना पड़ेगा। आईडी जो है ना, स्प्रिंग जेई वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब जावा जेई वाला। देखो, आईडी खुल गई हमारे पास। जब जब भी आप पहली बार कुछ भी काम करना शुरू करेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, ठीक है। एक आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अज्यूम करो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। लेट मी गिव द नेम एज डेमो और क्लास डेमो प्रोजेक्ट, क्लास डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बता रहा है कौन सा एक्सक्यूशन आईडी यूज कर रहा है, जावा 18, जावा 19 मेरे पास यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, लेट्स ट्राई दिस। फिर जेडीके कौन सा यूज करना है, इसके लिए यही शो कर रहा है दफना, बात का मसला होगा, खैर एनीवेज। हाँ, so let's just make the project and let's move further। इसमें देखिए एक एसआरसी करके फोल्डर बना, राइट। एसआरसी फोल्डर में सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, एक पैकेज बनाएं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इन डॉट जामिया हमदर्द, इन डॉट एसी लगा दूं, डॉट जामिया हमदर्द, ठीक है। डॉट से कुछ वर्ड्स को मैंने सेपरेट करा, इन लिखा, डॉट एसी, डॉट जामिया हमदर्द। ऐसा नहीं लग रहा जामिया हमदर्द डॉट एसी डॉट इन, है ना। चलिए, पर्पसफुली करा है मैंने। हाँ, अब ये बन गया यहाँ पर, राइट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या बनाया था, क्लास बनाई थी, न्यू क्लास, राइट क्लिक करा तो न्यू का ऑप्शन आएगा, क्लास पे जाएंगे, क्लास लिखा आपने, प्रोग्राम का नाम क्या दिया था मैंने, जावा, जावा पी आर ओ जी दिया था, राइट। सेम वही काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट। स्टब कहते हैं मतलब एक आउटलाइन को, ठीक है। किस मेथड की आउटलाइन आप चाहते हैं कि जब प्रोग्राम आप बनाएं तो ऑटोमेटिकली वो बन जाए। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मेन मेथड ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। नॉट एवरी क्लास विल हैव द मेन मेथड, फॉर अ मैटर ऑफ टाइम वी वांट टू एक्सपेरिमेंट, सो दिस क्लास विल हैव द मेन मेथड, लेट मी से फिनिश। अब देखिए पहला फायदा तो ये हुआ कि ये अपने आप ये
इसने स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन दिक्कत इसमें आ रही है मैंने इसको बनाते वक्त उसका वो चेंज कर दिया था शायद, इसलिए ये इसको क्लासेस को ले नहीं रहा है। जावा प्रोजेक्ट को ट्राई कर लेता हूँ मैं। इंस्टॉलेशन के टाइम ही वो दिक्कत कर रहा था, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, पाथ वगैरह चेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमें चूंकि रन करना है, तो एक बार देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है, इसमें नहीं बन के आ रहा, राइट? तो लेट्स गो अगेन SRC। हाँ, उसमें जेआरई नहीं आ रहा था, या ये भी कर सकते हैं जेआरई इसमें ऐड करें हम, तो शायद प्रॉब्लम चली जाए। जावा बिल्ड पाथ, ये क्रॉस दिखा रहा है, इसको अनबाउंड दिखा रहा है, तो हाँ, अब जावा 19 हमने इंस्टॉल भी करा है, लेकिन इसको भी वो अपडेट नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से वही पाथ वैसे करेंगे तब जाके करेगा उसको। एनीवेज, तो लेट मी राइट नाउ जस्ट मेक अ पैकेज, सेम पैकेज हम वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोबारा से, AC डॉट जामिया हमदर्द, ठीक है। Then let me make the same class again here. It's a different project, so it doesn't matter if we have the same class. Even if in the same project also, if it's a different package, then we can have the same class name also. So let me say the name of the class is Java PROG, ठीक है। इसमें भी मेन मेथड हम जनरेट कर लेते हैं, फिनिश। देखो अब की बार ठीक है सब कुछ, है ना? अब इसमें देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला काम हमने क्या करा था, system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। शॉर्टकट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें कहा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट, कंट्रोल एस, ठीक है। अगर इसमें मुझे कोई कंपाइलेशन एरर मैंने करी होती, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी होती, तो वहाँ पे नोटपैड में जब आपने टाइप किया था तब क्या करना पड़ रहा था, आपको कंपाइल करके चेक करना पड़ रहा था, एरर मैसेज आ रहा था, उससे समझना पड़ रहा था क्या एरर मैसेज है, फिर दोबारा जाके आपको उसको सही करना पड़ रहा था, फिर दोबारा से कंपाइल करना पड़ रहा था। आईडी में मसला ये है कि बैकएंड में आपका कंपाइलर हाथ के हाथ चल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो सब समझ रहे हैं कि एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट दे रहा है, जिसमें आप शॉर्टकट से आप कुछ स्टफ वगैरह जनरेट कर ले रहे हैं, यानी फंक्शन की बॉडी वगैरह जनरेट कर ले रहे हैं, है ना? इतना कोड मुझे लिखना नहीं पड़ा, अपना जनरेट होके आ गया, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके डेवलपमेंट को आसान करता है। इंटीग्रेटेड जो वर्ड यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये अपने आप में काम नहीं कर रहा है, वो बैकग्राउंड में जेडीके यूज कर रहा है, या कोई और टूल भी अगर यूज करना होगा तो वो भी टूल का यूज करेगा, वो कहीं और इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये उससे इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर है बात भाई? ठीक है। अब कोई गलती होगी, कंपाइलेशन एरर होगी, इसने यहीं पे आपके हाथ क्या बता दिया कि सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स भी देगा, चेंज सिस्टम टू जावा डॉट लैंग, एक्चुअली ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मुझे अपनी विजडम यूज करके उसे पिक करना पड़ेगा क्या सही चीज है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए, राइट। तब ये सही हो गया, राइट। मुझे रन करना है, सिंपली मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, ये आपको आउटपुट कंसोल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट आपका फास्ट हो गया, है ना, फास्ट भी हो गया, और कई सारी चीज़ें आप इसमें बेनिफिट्स आपको एडिशनल मिलेंगी, जैसे प्रोग्राम का डीबग करना हुआ आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ को एज अ डेवलपर आसान बनाएगा। कभी भी रियल प्रोजेक्ट में आप कभी भी नोटपैड पे बैठ करके उम्मीद करें कि आप काम करें और कंपाइल करें और करें, पता चला कि फिर तो आप 2 दिन का काम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे, है ना? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, नए स्टूडेंट जो एकदम बिल्कुल नए स्टूडेंट होते हैं, वो इस कन्फ्यूज़न में आते हैं, क्योंकि ट्रिवियल टीचर्स उनको ये बताते हैं कि भाई तुम जब तक लैंग्वेज सीख ना जाओ पूरी तरह से, तब तक आईडी यूज़ मत करो, हर चीज़ टेक्स्ट पे करो, ठीक है? ताकि तुम्हें चीज़ें याद हों। मैं कहता हूँ जब इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी है, हर दिन नई लैंग्वेज आ रही है, तो आप कीवर्ड्स को याद करने में कितना एफर्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं भाई, ठीक है? शुरू में ठीक है, 1-2 क्लास, 4 क्लास के कंटेंट को आप टेक्स्ट पे करके देख लो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रॉ लेवल पे काम कैसे होता है, ठीक है? उतने तक काफ़ी है। फिर आ जाओ जिस पे आपको रियल एनवायरनमेंट में जिस चीज़ पे काम करना है, उसको सीखो, क्योंकि इसका भी एक लर्निंग कर्व होता है ना? इसको भी सीखने में टाइम वेस्ट होगा आपका। टाइम वेस्ट नहीं बल्कि यूटिलाइज़ होगा रादर, मुझे ये कहना चाहिए, है ना? तो जब उसपे यूटिलाइज़ होना है टाइम आपका, तो टाइम उस जगह डालो। आप कांसेप्ट आप सीखे रहोगे, तो फिर आपको नई चीज़ें, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उनको तो आईडी आपको ऐसे ही हेल्प कर देगी करने के लिए। गूगल है आपके पास, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, ठीक है? तो
ऑनलाइन एग्जाम होना खतरनाक हो गया है वैसे, ऑनलाइन एग्जाम अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वही गड़े गुड़े बराबर हो जाएंगे, फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर आईडी हेल्प करता है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब वही काम हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फ्लोट फ्लोट एफ डिक्लेयर कर दिया, राइट। लेट मी सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ जो हमने अभी करा है, ताकि एक बार क्विकली उसको हम देख लें। एक्स को प्रिंट कर दिया मैंने, फिर क्या प्रॉब्लम कह रहा है इसको, अच्छा स्टैटिक की वजह से कह रहा है, राइट। स्टैटिक, ये क्यों लगा रहे हैं स्टैटिक, ये हम बाद में देखेंगे, अभी अभी इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड है बेटा, अभी क्यों लगा रहे हो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, सी प्लस प्लस से पढ़ा है आपने, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा फिर आपने, अब याद ना हो वो अलग बात है। स्टैटिक है वहां पे, सेम सेम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो यहाँ पे है। तो let me again print floating point variable, that is f. Then let me say after initialization, after initialization initialization, ठीक है। then system.println again x and f। भाई सेम कोड है, देख लो कोई चेंज तो नहीं है, सेम है। वैल्यू असाइन नहीं करिए, राइट राइट राइट। तो वैल्यू असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू से एग्जाम्पल 8 एंड फ्लोट f इज इक्वल टू 7.5 है, चलो जो आप कह दो। f लगाएं कि ना लगाएं, अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो खुद ही बता रहा है कि देखो यहाँ पे तुमने प्रॉब्लम करी है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, यही आपने एरर देखा था ना वहाँ पर, यहाँ बता रहा है आपको। कई बार आईडी जब एरर बताता है तो ज्यादा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी बताता है, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ ये जो बैलून दिख रहा है इस पे एक बार आप क्लिक करना चाहो तो ये बताएगा ऐड कास्ट टू फ्लोट और चेंज टाइप फ्लोट टू डबल, ठीक है। खैर मैं कास्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं टाइप भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको बताना चाहता हूँ कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है, तो मैं उसके सजेशन पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एफ लगा दिया मैंने, काफी कुछ और होती है, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट रन इट, फाइन। बट यू विल नोटिस कि जब आप बड़े एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो बिना आईडी के आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ इस पूरे बैच में कौन लोग हैं जो एकदम बिगनर है जावा से, अरे बाप रे इतने सारे लोग हैं, अच्छा जावा नहीं किया है, चलो। अब जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनमें से कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि यहाँ आकर के बैठेगा और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट बना करके ऐसे ही एक छोटा सा जावा प्रोग्राम कुछ प्रिंट करने के लिए बना के अभी मेरे सामने दिखाएगा। गलती होगी तो डरने की कोई बात नहीं है, पूरा बैच आपकी हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे हाथ लगाने को कौन तैयार है। आप करेंगे, आप बिगनर है, बिगनर है, अच्छा तो आ जाओ फिर, बस 5 मिनट और, ठीक है, नमाज के लिए भी छोड़ देंगे, अभी तो नमाज का आ जाओ। आप सभी को इनको ओपन नहीं, ठीक है, सुनो, नया प्रोजेक्ट ही बनाना है, हाँ, प्रोजेक्ट बना के फिर पैकेज बनाओ, फिर पैकेज बना करके फिर उसके अंदर ये फाइल बनाओ, ऊपर फाइल न्यू प्रोजेक्ट, राइट, नाम नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, ये बन गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बेटा आप देखो, हटाओ उसको, इसके पास देखो, अगर हमने क्लास डेमो प्रोजेक्ट का नाम दे दिया होता तो क्या बनता, नहीं सर डुप्लीकेट, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, उस क्लास के अंदर इंटीजर एक्स किया था, ठीक है, कैर एक्स कर दिया होता तो करता नहीं करता, राइट। मेथड नेम किया था सेम नाम से एक और मेन मेथड बना तो करता, एक स्पेस में या
एक स्कोप में सेम नाम का दो आइडेंटिफायर काम नहीं करेगा ऑफ द सेम नेचर। मतलब अगर वेरिएबल चाहे क्लास में एक्स नाम का वेरिएबल बना ले और एक्स नाम का मेथड बना ले, वो एक अलग बात होगी, ठीक है। लेकिन दोनों वेरिएबल हो या दोनों मेथड हो सेम नाम के, वो काम नहीं करेंगे एक स्कोप में, ठीक है। चलो अब इन्होंने नाम थोड़ा चेंज किया, जो बनाया, राइट, इसलिए ये काम कर रहा है। ड्रॉप डाउन करो, वो छोटा सा एक एरो दिख रहा है, उसको क्लिक करिए, काम की दिख रही है, राइट। एसआरसी का मतलब क्या है? सोर्स, ठीक है। न्यू पैकेज बनेगा, चाहिए तो सेम पैकेज बना लीजिए, in.lc.java। इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। राइट, अब उसमें एक क्लास बना लीजिए, सेम नाम से बना लीजिए, कोई और नाम देना है, कोई और नाम दे दीजिए, ठीक है। डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है, मेन रुकिए यहाँ पर क्लिक करिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को आपको जनरेट करना है, वरना फिर हाथ से लिखना पड़ेगा उसे। फिनिश, जनरेट हो गया। अब इसमें मैसेज प्रिंट करिए, सिस्टम में कैप्चर होगा, नहीं हो जाएगा, पहले नहीं होगा, ऑन करना डायरेक्ट ऑन होगा, बाद में या कमांड प्लस स्पेस दबाकर, बहुत सारी शॉर्टकट है। बल्कि जो बेसिक शॉर्टकट है किसी भी आप आईडी में जब भी काम करें, सबसे पहले शॉर्टकट ही सीखें, क्योंकि आपका बहुत टाइम हो जाएगा। इसमें आई डोंट नो चेंज करने का है कि करना पड़ेगा, लेकिन वो तो चेंज करना होता है, कीवर्ड में चेंज करना होता है, लेकिन तुम अगर जैसे कमेंट भी कर रहे हो तो कंट्रोल स्लैश कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, चला के देखिए, चल गया आउटपुट सेव अभी नहीं हुआ, ठीक है, आउटपुट आ रहा है, अब पूरा कोड बना लीजिए, छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आके काम करने से एक फायदा और होता है, क्या होता है बताओ? कॉन्फिडेंस आएगा, जो एक नर्वसनेस आती है, एंग्जाइटी आती है, जो आप इंटरव्यू के टाइम पे फील करोगे, वो यहीं से आप सीख लेते हो कि उसको कैसे उससे झेलना है उसको। लेकिन वो तभी होगा जब जो सुन रहे हो लेक्चर में प्रॉपर्ली सुनो और घर पे जाके फिर पढ़ो उसको, ठीक है। तो खैर अभी इस वक्त लेक्चर रोक देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे इसको।